Welcome again in second session. Now, I would like to request Anukriti. Are you ready for that? Hello? Anukriti? Anukriti? Yes, ma'am. I'm audible? Yes, ma'am. Okay. May I start, ma'am? Yeah, I was just join the people and then only after few seconds you can start. Okay, ma'am. We will wait for some participants. Huh? They are join us. Okay, ma'am. So Raghav, presentation was good. Good effort. Thank you, ma'am. Okay. So now start your presentation, Anukati. Yes, ma'am. Uh, Very good morning to the Honorable Principal Sir, teachers, and all who are joined this meeting. We are presenting the delicate poisons in forensic toxicology. Now, I would like to introduce my friends who present their presentation in the different examples of the Delirium poison. Firstly, myself, Anushri Dhaka, I am going to present the belladonna poisoning. Its common name is deadly nightshade and the scientific name is Atropa belladonna. The next one is Anjum. She is presenting the cannabis sativa. Its synonyms are an Indian hemp, weed, hashish, bhang, and grass. And the last participant is Dhatura poison. Next one participant is Tachi Shakdipia. She is presenting Dhatura festuosa and cocaine. Dhatura festuosa, its common name is thorn apple and Jimson seed. Now, I'm going to present the delirium poisons. Now, firstly, I would like to explain what is delirium poison and what are the examples of this. so please share your screen. You can share your screen Yes, now. ma'am. Okay. Firstly, I would like to explain what are the delirium poisons and what are the examples of this. Deliriums are the poisons acting on the brain and including altered consciousness with confusion, delusions, hallucinations, and agitation. The examples are given below: Datura, deadly nightshade, Atropa belladonna, henbane, hyoscyamus, Indian hemp, cannabis sativa, and cocaine. Now, I'm going to start the belladonna poisoning. This is the Atropa belladonna. It includes the whole plant is poisonous. Atropa belladonna is the scientific name and the common name is deadly nightshade. The active principle includes alkaloids like hyoscyamus, belladonine, and atropine, that is 3 to 15%. Root contains 82 to 97% of the hyoscyanin and scopolamine is at 2.5%. Now, the mechanism of the toxicity. Belladonna absorbs through skin and rapidly detoxify in liver. Manic and paranoid psychosis. Now, the symptoms of the Atropa belladonna. Onset few minutes to half an hour. सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, मतलब बेलाडोना की जो पॉइजनिंग है वो बहुत ज्यादा ओवरडोज होने की वजह से इसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो है ड्राई एज बोन की तरह हो जाते हैं. लाइक माउथ एंड थ्रोट विल बी ड्राई, बहुत ज्यादा सूख जाते हैं, माउथ एंड थ्रोट बहुत सूख जाते हैं. इंटेंस थर्स्ट, बहुत ज्यादा उसे थर्स्ट लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है. डिफिकल्टी इन टॉकिंग एंड स्वेलोइंग, बर्निंग पेन इन एब्डोमेन, डिजीनेस, कंफ्यूजन, ड्रंकन गेट, inability to stand, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, hoarseness of voice and aphonic. Now this is the picture of symptomatic picture of the belladonna poisoning. Hot as a desert. The other symptom is hot as a desert. कि इसमें क्या क्या होता है? Like the body temperature may rise as a high 105 to 10 degree Fahrenheit. Skin becomes dry, hot and exfoliated. जब अंदर की ग्लैंड्स वगैरह सेक्रेशन वगैरह बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है तो ऑब्वियसली स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, हॉट हो जाएगी एंड एक्सफोलिएटेड.
रेड एज अ बीट, उसकी आईज बहुत ज्यादा रेड हो जाते हैं, कंजक्टिवा रेड, बिकम्स फेस बिकम्स फ्लश्ड, ब्लाइंड एज अ बैट, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, फोटोफोबिक, डिप्लोपिक एंड लॉस ऑफ एकोमोडेशन, पल्स इंक्रीज हो जाती है, मस्कुलर स्पाज्म आते हैं एंड कन्वर्जन. Mad as hater. Person may be silent or may mutter distinct, incoherent and inaudible words. Visual auditory hallucination sets in as patient may become restless, noisy, violent, and may have to be kept controlled in bed by several persons as he is inclined to run away from bed and wander about. Movement shows certain ludicrous, grasping imagination objects. Picking up the bed clothes, imaginary threads from the tip of his fingers, carphobia, may be in fits of laughter and at other time in tears. According to delirium, may pass off in an hour or so on. When patient becomes drowsy and silent, person begins to improve and awakes with severe headache, vertigo, nausea and vomiting. Vision remains disordered for a few days until dilation of pupils subsides. Finally, the patient recovers completely and remembers nothing of his illness or event that had happened. Now the treatments of the toxicity. क्या क्या हमें उसको treatments दे सकते हैं अगर belladonna poisoning की overdose हो जाए तो? Artificial oxygen दे सकते हैं. Correct ABCs, that is airway, breathing and circulation. Antidotes दे सकते हैं कुछ. Anti-inflammatory, symptomatic treatment as a patient's condition. Stomach wash repeatedly stomach को wash करते रहना है potassium tannic acid से. एम्बिटिक्स कैन बी यूज्ड. कुछ मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन यूज करनी है जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाए, लाइक फॉस्टिगमीन, 2mg4 एंड न्यूस्टिगमीन. Morphine is to be avoided because danger of depressing the respiratory center. Respiratory center में danger हो जाने की danger ना हो जाए उस वजह से हमें morphine को avoid कर देना है. Light diet देनी है, हल्का खाना देना है उसको, and free purgation should be carried in 3 to 4 days. Symptomatic. Now the medical legal importance. Mostly abortifacient होता है, मतलब mostly abortions के लिए इसे use किया जाता है. Commonly accidental होता है and rarely homicidal and suicidal. Now the stages of coma. Stages of coma के बहुत rare chances होते हैं, but अगर coma में अगर patient चला जाए overdose की वजह से तो ये हमें features देखने को मिलेंगे. Occurs when drowsiness passes into stupor followed by convulsions and coma. General signs of deterioration, death usually result. और कभी-कभी बहुत ज़्यादा overdose हो जाने की वजह से death भी देखने को मिलती है. Now the postmortem appearance. Now the postmortem appearance is congestion, presence of seeds in the stomach and intestine. Now the fetal dose and the fetal period. Fetal dose, that is 120 mg atropine, and the fetal period within 24 hours. Note that be careful, the shrub may look innocent but they are toxic. Thank you very much. Now Excellent, further explain. Anukriti. Excellent. Now I would like to request next participant, Anjum. Yes, ma'am. Yeah. Slides are visible? Yes, please. Yes. Good morning, respected principal sir, teachers, and my dear friends. Myself Anjum Abbasi from BHMS second year, and my topic for presentation is cannabis sativa. Now, I'm going to explain its features. Cannabis sativa के features.
सिनोनिम्स, इसे हम इंडिका भी कहते हैं, इंडियन हेम्प, वीट, हैश, हशीश, भांग, ग्रास और डॉब भी कहते हैं। हमारे इंडिया में ये प्लांट जो है वो ऑल ओवर सब जगह उगता है, बट इसका जो कल्टीवेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है। जो ये प्लांट होता है कैनबिस सटाइवा का जो प्लांट होता है ये डायोशियस होता है। फीमेल प्लांट अलग होता है और मेल प्लांट अलग होता है। और फीमेल प्लांट जो होता है वो टॉलर होता है एज कम्पेयर टू मेल प्लांट, और वो फीमेल प्लांट जो होता है वो ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और मोर वैल्यूएबल होता है एज कम्पेयर टू मेल प्लांट। इसके अंदर इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं सब के अंदर एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट इट्स रूट्स, सीड्स एंड स्टेम। एक्टिव प्रिंसिपल्स कैनबिस सटाइवा के अंदर होते हैं कैनेबिडियोल, कैनेबिनॉल, जो कि इसके रेजिन में प्रेजेंट होते हैं, बट ये दोनों जो होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, बट ऑन द एक्सपोजर ऑफ हीट ये कन्वर्ट हो जाते हैं टेट्राहाइड्रोकैनिबिनॉल्स के अंदर। ये एक सीएनएस स्टिमुलेंट है, एक साइकोएक्टिव ड्रग है। टीएचसी जो होता है वो हमारे ब्रेन रिसेप्टर्स पे अटैक करता है। टीएचसी जो होता है वो मेटाबोलाइज्ड होता है लिवर में, और ये एक सॉलिड सॉल्युबल है। ये एक वर्ल्ड वाइड एज अ इलीगल ड्रग यूज होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कैनबिस सटाइवा का प्लांट इस टाइप का होता है, ग्रीन। नेक्स्ट इज प्रिपरेशंस। भांग, भांग को हम सिद्धि, सब्जी भी कहते हैं। ये ड्राइड लीफ से प्रिपेयर होता है और उसके फ्रूट शूट से प्रिपेयर होता है। ये माइल्डेस्ट होता है, इसके अंदर 15% एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट होता है। फ्रेश भांग जो होती है वो ज्यादा टॉक्सिक होती है, मतलब उसमें ज्यादा नशा होता है और ज्यादा नार्कोटिक होती है। तो अगर हम भांग को 2-3 सालों तक रखते हैं तो उसका असर जो होता है वो थोड़ा कम होता है, बट यूं नहीं कह सकते कि एकदम कम हो जाता है। माइल्ड इफेक्ट होता है उसका, बट प्लेजर गिविंग होता है। जैसे कि मैंने बताया भांग इस टाइप की दिखती है। नाउ द नेक्स्ट इज गांजा। गांजा को हम मैरिजुआना, पॉट, ग्रास और वीड भी कहते हैं। ये प्रिपेयर होता है फीमेल प्लांट के फ्लावर टॉप से। इसका जो अपीयरेंस होता है वो रस्ट ग्रीन कलर होता है विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इसके अंदर 15 to 25% एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट होता है, और हम इनटेक इसको एज अ स्मोकिंग हम इसे इनटेक लेते हैं इन सिगरेट्स के अंदर, और सिगरेट्स के अंदर 0.3 to 0.6 ग्राम कैनबिस होता है, उसे हम कहते हैं रेफिर और जॉइंट। जैसे मैंने बताया आपको गांजा का रस्ट ग्रीन अपीयरेंस होता है, यहाँ इस पिक में साफ दिख रहा है कि हाँ इसका अपीयरेंस इस टाइप का ही होता है। नेक्स्ट इज चरस और हशीश। चरस और हशीश को हम डॉप और शिट भी कहते हैं। ये एक रेजिन फॉर्म में होता है जो इसके लीव्स और स्टेम्स में से निकलता है। इसके अंदर 25 to 40% एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट होता है। इसका जो अपीयरेंस होता है वो डार्क ग्रीन और ब्राउन इन कलर होता है। इसे हम मिक्स करते हैं टोबैको के साथ यूज करने के लिए, और या फिर हम हुक्का, जैसे हम हुक्का देखते हैं वो हुक्का बार्स के अंदर, उसके अंदर एज अ हुक्का भी हम उसे इनटेक कर सकते हैं। इसका जो स्मोक होता है वो बहुत ज्यादा देर तक हमारे लंग्स के अंदर रहता है, और इसका जो बहुत ज्यादा पोटेंटिव इफेक्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला था कि इसे डॉप और शिट भी कहते हैं, तो यहाँ पे इसकी अपीयरेंस जस्ट लाइक अ शिट है, चरस। नाउ इसके कुछ सिम्टम्स हैं इंटॉक्सिफिकेशन के। इसके दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं, साइकेट्रिक एंड फिजिकल। साइकेट्रिक के अंदर पेशेंट को फील होता है कि फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट, ना तो उसे घर वाले अच्छे लगते हैं ना बाहर वाले अच्छे लगते हैं। वैसे बाहर वाले किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। इररिलेवेंट थॉट्स, अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं उसको कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं अभी मर जाऊंगा या नहीं मरूंगा, इस टाइप के उसका थॉट्स आते हैं। विविड इमेज, उसे ऐसा फील होता है कि कि जैसे उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी है, कभी तो वो पॉजिटिव वे में आता है, कभी वो नेगेटिव वे में आता है। हेलुसिनेशन, चक्कर आते हैं। यूफोरिया मतलब उसको ऐसा, जब वो ड्रग्स लेता है तो वो एक अलग ही जोन में होता है, उसे लगता है कि हाँ सब अच्छा अच्छा लग रहा है, वो कभी एक्साइट हो जाता है, सब उसको अच्छा अच्छा सा लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब वो ड्रग्स लेता है, मींस कैनबिस सटाइवा जब लेता है वो, तो उसमें एक अलग तरीका का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ही फील्स लाइक अ सुपरमैन। फियर ऑफ डाइंग रहता है, और इम्पेयर्ड जजमेंट, मतलब वो जल्दी से जजमेंट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज फिजिकल, इंक्रीज्ड एपेटाइट एंड थर्स्ट, स्लाइट नोजिया, हल्के से चक्कर आते हैं, डिजीनेस, अटैक्सिया,
ढंग से वो खड़ा नहीं हो पाता है, ट्रेमर्स, कभी भी चिल्लाने लगता है, टैकीकार्डिया, हार्ट बीट में उसकी चेंज होता रहता है, कभी लो होती है कभी हाई होती है। नेक्स्ट इज फेटल डोज एंड फेटल पीरियड। फेटल डोज, चरस की फेटल डोज है 2 ग्राम, गांजा की है 8 ग्राम, भांग की है 10 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, टीएचसी की है 30 मिलीग्राम पर किलोग्राम और फेटल पीरियड सेवरल डेज। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हम गट डिकंटेमिनेशन करते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं फॉर पेरोनिया। अब पेरोनिया क्या होता है, मतलब जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उसे फिट्स आते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं पेरोनिया। हेलोपेरिडोल फॉर एक्यूट साइकोटिक स्टेट, जब बहुत ज्यादा एक्यूट स्टेट में है तो हम उसे हेलोपेरिडोल देते हैं, एंड सम सपोर्टिव मेजर्स। नाउ ऑटोप्सी फाइंडिंग्स। ऑटोप्सी के अंदर साइंस ऑफ एस्फाइक्सिया देखने को मिलते हैं, अनएब्जॉर्ब भांग देखने को मिलती है स्टमक के अंदर। नेक्स्ट इज मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, एक केस जो सबने ही सुना है, सुशांत सिंह राजपूत केस। ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर फॉरेंसिक साइंस की सारी स्टडीज आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल लगा के सुसाइडल हैंगिंग है, फिर लगा के पार्शियल हैंगिंग है, फिर लगा कि ये मर्डर है, फिर लगा ये पॉइजनिंग है, और फिर जब मोस्ट इम्पोर्टेंट केस ने टर्न लिया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये सामने आई कि ये ड्रग पेडलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग का केस है। नाउ इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। ये ड्रग होता है अब्यूज, इट इज अ ड्रग ऑफ अब्यूज, इट इज एक्यूट इंटॉक्सिफिकेंट, ये बहुत ज्यादा नशीला पदार्थ होता है। तो इसके अंदर जब ये नशीला पदार्थ होता है, इसके अंदर मोटर स्किल्स और इम्पेयर्ड जजमेंट हमको फील होता है। इसीलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि कभी भी अल्कोहल और ड्रग्स लेके ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम खुद की लाइफ तो डेंजर में डालेंगे और जो सामने हमारे साथ है, जो हमारे पास बैठा है, जो रोड पे चल रहा है, हम उसकी लाइफ को भी डेंजर में डालेंगे। मैरिजुआना और चरस जो होते हैं वो रोड पॉइजनर्स यूज करते हैं, क्या करने के लिए, मतलब रॉबरी करने के लिए ये यूज करते हैं, ताकि वो जो विक्टिम है उसको बेहोश कर सके और जो भी चीजें हैं चोरी करने की वो उससे चोरी कर ले। इट इज यूज्ड एज एन एफ्रोडियासिक। कैनबिस जो होता है ये एक सुसाइडल आइसोलेशन, मतलब एक सुसाइड के उसमें ये काम आता है। रेन एमोक एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ अगर पेशेंट ने बहुत ज्यादा ड्रग्स इनटेक कर लिए होते हैं, तो हमें जो भी पेशेंट का जो क्लोज्ड वन होता है, अगर उसे कोई काम रोकने से उसे कोई काम करने से उसे रोकता है, या फिर अगर उसे कोई अच्छी बात बताता है, तो उसे लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, इसे तो मुझे अब अपने रास्ते से हटाना ही, अब तो मैं इसका मर्डर करके ही रहूंगा। तो वो उसके इन्फ्लुएंस के, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में वो इतना पागल हो जाता है कि वो अपना जो क्लोज्ड वंस होते हैं, जो भी रिलेटिव होता है, जो भी उसको अच्छी बात बताएगा या जो भी उसे कोई काम करने से रोकेगा, तो वो उसको खत्म कर देता है। और फिर जब उसको होश आता है तब उसे लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, तो वो खुद सुसाइड कर लेता है या फिर अपने आप को सरेंडर कर लेता है। नाउ द लास्ट थिंग इज दैट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि टेकिंग ऑफ ड्रग्स इज नॉट ब्रेवरी बट इट इज स्टूपिडिटी, बिकॉज यू आर नॉट द ओन who suffers. All your family members, your close ones and relatives will also suffer mentally, physically, emotionally and financially. So share your emotions and views in a good company. Thank you. And further is explained by my friend Prachi Shakdipya. Thank you, Anjum. So nice presentation by you. Very good effort. Now I would like to request Prachi Shakdipya, please present your presentation and please share your screen. Respected principal sir, teachers and all my friends, a very good morning to all of you. I am Prachi Shakdipya and I will cover two diluent poisons which are Dhatura and cocaine. सबसे पहले बात करते हैं धतूरा के बारे में। धतूरा का फुल नेम होता है धतूरा फेस्टियोसा और इसका कॉमन नेम है थॉर्न एप्पल एंड जिम्सन सीड।
इस प्लांट की दो वेराइटीज होती है। फर्स्ट वन इज धतूरा एल्बा जिसके वाइट फ्लावर होते हैं, एंड सेकंड इज धतूरा नाइगर जिसके डीप पर्पल फ्लावर होते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ धतूरा। धतूरा के फ्रूट्स स्पेरिकल होते हैं, इनके शार्प स्पाइन होते हैं और दे कंटेन अप टू 500 येलोइश ब्राउन सीड्स, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बेल शेप्ड होते हैं। धतूरा का प्लांट हाई एल्टीट्यूड और हिमालय रीजन में ग्रो करता है। इस प्लांट के सारे पार्ट्स पॉइजनस होते हैं, लेकिन सीड्स और फ्रूट सबसे ज्यादा पॉइजनस होते हैं, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। नाउ एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ धतूरा। एक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है वो केमिकल सब्सटेंस जिनकी वजह से उस प्लांट की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है या वो उस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। धतूरा के एक्टिव प्रिंसिपल है हायोसिन, हायोसाइमिन, एट्रोपिन एंड धतूराइन। नाउ मोड ऑफ एक्शन, कि ये एक्टिव प्रिंसिपल किस तरह से बॉडी पे एक्ट करते हैं। ये सबसे पहले ब्रेन के हायर सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, उसके बाद मोटर सेंटर को, और लास्ट में ये उन सेंटर का डिप्रेशन करते हैं जिसकी वजह से उस पर्सन को पैरालाइज भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी सेंटर को ये फर्स्ट स्टिमुलेट करते हैं, उसके बाद उन्हें डिप्रेस करते हैं, और हार्ट सेंटर पे भी इनका यही इफेक्ट होता है, ये उन्हें स्टिमुलेट करते हैं। ये एल्केलॉइड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आइज, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स और बॉडी टेम्परेचर पे एक्ट करते हैं। इन्हें लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी यूज किया जाता है और ये ब्रोंकियल सिक्रेशन को डिक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। अगर धतूरा को स्मॉल डोज में कोई पर्सन लेता है तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, लेकिन अगर वो इसे लार्ज डोज में ले लेता है तो डेलीरियम और कोमा की स्टेज भी आ सकती है। नाउ सिम्टम्स ऑफ धतूरा पॉइजनिंग। धतूरा पॉइजनिंग के सिम्टम्स को 8 Ds ऑफ धतूरा से भी जाना जाता है। इसमें फर्स्ट है ड्राइनेस ऑफ माउथ, थर्स्ट एंड स्लर्ड स्पीच, मतलब उस पर्सन का माउथ एकदम ड्राई होगा, उसे प्यास ज्यादा लगेगी और बोलने में डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट इज डिस्फेजिया, इसका मतलब है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, उसे सॉलिड या लिक्विड कुछ भी चीज स्वेलो करने में डिफिकल्टी होगी। उनके प्यूपिल्स डायलेट होंगे, दे हैव डिप्लोपिया, मतलब डबल विजन होगा उस पर्सन के। देयर स्किन इज ड्राई एंड हॉट, मतलब उनकी स्किन एकदम ड्राई होगी और गर्म रहेगी पूरी स्किन। देन नेक्स्ट इज डाइसूरिया, मतलब डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। देन ड्रंकन गेट होगा उस पेशेंट का, डेलिरियम की स्टेज आ सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा डोज में हो गया, बहुत सीवियर कंडीशन है, तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नाउ फेटल डोज ऑफ धतूरा। फेटल डोज इज 100 to 125 सीड्स और इसका फेटल पीरियड है 24 आवर्स। ट्रीटमेंट ऑफ धतूरा पॉइजनिंग, अगर किसी ने फेटल डोज में धतूरा ले लिया है तो उसे क्या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना चाहिए। फर्स्ट है उस पर्सन का, उस पेशेंट का स्टमक वॉश किया जाता है वीक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एंड टैनिक एसिड से। देन इमेटिक्स भी यूज कर सकते हैं। इमेटिक्स का मतलब है वो सब्सटेंस जो वॉमिट इंड्यूस करते हैं। अगर किसी पर्सन ने धतूरा पॉइजनिंग हुई है किसी पर्सन में, तो उस केस में मॉर्फिन को अवॉइड करेंगे। उस केस में मॉर्फिन अवॉइड करेंगे, क्योंकि मॉर्फिन अगर यूज करते तो उससे रेस्पिरेटरी सेंटर का डिप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। पॉइजनिंग के केस में स्टार्टिंग के 3-4 डेज में लाइट डाइट और फ्री पर्गेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्री पर्गेशन का मतलब है कि उस पर्सन का स्टमक वॉश किया जाता है पूरी तरह से, एंड देन फाइनल ट्रीटमेंट जो होता है वो उस पर्सन के सिम्टम्स को देख के किया जाता है कि क्या सिम्टम्स है और उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ना पोस्टमार्टम अपीयरेंस। धतूरा पॉइजनिंग से अगर किसी की डेथ हुई है तो उसमें सबसे फर्स्ट एस्फाइक्सिया के साइंस दिखेंगे। उसके बाद उसमें स्टमक और इंटेस्टाइन में धतूरा के सीड्स और फ्रेगमेंट्स भी मिल सकते हैं। उनके ऑर्गन्स में स्लाइट इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगा और लंग्स में इडिमा भी प्रेजेंट हो सकता है। नाउ मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ धतूरा। धतूरा के क्रश्ड और पाउडर सीड क्रिमिनल यूज करते हैं अपने विक्टिम को बेहोश करने के लिए, किसी भी रॉबरी, रेप और किडनैपिंग से पहले। ये सुसाइड के लिए यूज में नहीं लिया जाता है और होमिसाइड भी वेरी रेयर होता है। समटाइम्स यूज्ड एज एबॉर्टिफिकेशन, मतलब कभी कभार ये एबॉर्शन के लिए भी यूज में किया जाता है। इसके एक्सीडेंटल केसेस बच्चों में हो सकते हैं, यूजुअली बच्चों में हो सकते हैं, क्योंकि वो गलती से इसके फ्रूट खा ले तो उनमें पॉइजनिंग हो सकती है। धतूरा के सीड्स, लीव्स को टॉबिको और गांजा के साथ मिक्स करके एक पाइप में स्मोक भी किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज कोकेन। कोकेन एक ड्रग है जिसे डेलिरियम पॉइजन की कैटेगरी में रखा गया है। प्रेजेंट जनरेशन में
प्रेजेंट जनरेशन का हाई परसेंटेज इन ड्रग्स का एडिक्ट होता जा रहा है। ये ड्रग्स एक सांप की तरह प्राची, हेलो।